ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਨਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ, ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਊਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ, ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾਵੈ, ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ, ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹੀਓ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਖੁੰਬੇ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਲਈਏ। 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ। ਪਾ ਕਾਹਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ। ਖੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੀ, ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੰਭੇ ਚਾੜ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਮ ਦੀ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੰਗਣ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਦੀ ਪਾਹਾ ਲਾ। ਜੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੋਲਦੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲੜਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਬਰੀ ਬਰੀ ਮੈਂ ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫੱਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਮ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਮਿਹਨਤ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹਉ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਲੋ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਵੇ 10-12 ਵਜੇ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਜੇ। ਆ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ,
अंदर दी भुख है, तू प्रशादा छकदा है, तू जल छकदा है। जिस दिन तेनों अपनी आत्मा का पता लग गया, तू उस दिन अमृत छक के गुरु की बाणी भी पढ़न लग पेगा। ये केवल तो केवल साडे बहाने ने। ये देखो जी, सानू ये परमात्मा का हजे हुक्म नहीं होया, उसकी किरपा नहीं हुई। मैं कहना जिस दिन तेरा जन्म होया सी, किरपा उस दिन ही होगी जी। जात सुभाना तां जम्मिया, परिवार भला पाया, नहीं तो वह भी जीव सन, वह भी बच्चे सन जिन्हां दी मौत जीवन हुंदियां होया ही नाल ही मौत हो जाती है। तेरे ते परमात्मा की बख्शिश होई, उन्हें तेनों जीवन दिता, तू उहदा नाम क्यों नहीं जपदा। भाई साहब का एक कवित, चलो पहली पंक्ति सांझी कर देना। कह लगे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। कह लगे जे गुरु के चरणों के विच एक कदम तुसी पुट्टो ना, तो परमात्मा अगों करोड़ा पैंडे तुहानू लैन आउंदा है। पर एक कदम तो पुट्टिया ना, तू वो एक कदम आप पुट, गुरु तेनू लखां करोड़ा पैंडे लैन आवेगा। जे तू एक कदम ही पिछे करके तो बैठा ठेके ते रवें, उत्थे गुरु की करेगा। भगत कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा बचना, कह लगे कबीर साचा सतगुर क्या करे, ज्यों सिखा मैं चूक। कहते जे सिख दे विच, जे जग्यासू दे विच ही कमी है, उत्थे सच्चा गुरु की कर सकता है। गुरमुखो बारिश हुंदी है, मीह पैंदा है, तो थल्ले तुसी कुज्जा रखिया है, तो जे कहो कि कुज्जे दे विच भांडे दे विच मीह दा पानी पै जावे, मीह दा पानी रब दी बख्शिश है जरूर पवेगा, पर उस कुज्जे दे उत्ते पई होई चप्पणी नूं तुहानूं उद्यम करके आप चुकना पैना। चप्पणी चुकोगे कुज्जे तो पानी फिर टिकना है। सतगुरु कहन लगे तू मेहनत कर, तू उद्यम कर, एक बार उद्यम करके तू गुरु गुरु जपेगा तो परमात्मा मेहर करके तेरी झोली दे विच दात पावेगा। सतगुरां ने नाम हर काम सानू गुरमत दा सिद्धांत जां इंसानियत ये गल कहिंदी है कि भलिया तू उद्यम कर। इसे नूं हाशिम शाह ने भी एक बड़ी सोहनी गल कही सी, कह लगे हाशम फतेह नसीब तिन्हां नूं जिन्हां हिम्मत यार बनाया। कहंदे जिन्हां दे कोल हिम्मत नहीं, उन्हां नूं जिंदगी दे विच कामयाबी उन्हां दे विचों जिहड़ी ये फतेह नसीब नहीं हुंदी। ते सियाणे एक गल कहिंदे हुंदे सन, कहन लगे तू मेहनत कर, तू जिहड़ा वो मेहनत कर ते ओहदे ते उत्ते रहमत जिहड़ी है वो परमात्मा करेगा। पर मनुख सारे कामां नूं मेहनत करदा है। कि साडे बच्चे स्कूलों च जांदे ने, इहदे च साडा उद्यम नहीं। पढ़ना बच्चे ने है, पर माँ बाप उन्होंने प्यार दे नाल जां कुट मार के किसी भी तरीके दे नाल उद्यम करके स्कूल च भेजदा, ते एक दिन बच्चा पढ़ लिख के चंगा अफसर बन जाता है। जे पहले दिन माँ बाप रोंदे हुए ने स्कूल ना छड्ड के आउंदे, उद्यम ना करदे, ते बच्चा कदी अफसर ना बनदा। देखो इत्थे वेलड़ा नूं कोई थां नहीं। मैं फिर रिपीट कर देवां, जे साडे मन च ये है ना, देखो जदों किरपा हो जाएगी उदों नाम जप लांगे, तो जिहड़ी परिभाषा तुसी किरपा दी रखी फिरदे जे सारी उम्र दे विच नहीं जे आउणी। मनुख सारी उम्र नहीं नाम जपदा, क्योंकि पिछे ये सलोक दे विच जिक्र आ चुका है कि जे एक बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। साडा मन दाल बनिया पिया, दुफाड़ बनिया पिया। तुसी कदी अपनी निजी जिंदगी च वेखना। चलो तुहानूं मैं एक तरीका दस देना, प्रैक्टिकल कर लिओ इस गल दा उद्यम दा। अज मन च सोच के जाओ कि सवेरे 4 बजे उठ के अमृत वेले उठ के 3 बजे उठ के मैं जपजी साहब का पाठ करना। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 10 मिनट लगणगे। तुसी रात नूं अलार्म ला के सौ जाओगे, तो जो सवेरे 3 बजे ना उदों मन ने कहना चल अगे किहड़ा कीता, दुपहरे कर लांगे, इत्थे किहड़ी बला चली है। ये साडे अंदर दी सच्चाई है। असी उद्यम करनों भजदे आं, उद्यम नूं ही परमात्मा ने जिहड़ी वो पहल दित्ती। सतगुरु कहण लगे तू उद्यम कर, जिन्ना चिर उद्यम नहीं उन्ना चिर रब की दात जिहड़ी वो झोली दे विच नहीं पैंदी। उद्यम पहला है, बाकी कर्म परमात्मा का। एक उदाहरण होर दे देवां, जदों पानी उबलदा है, असीं किन्ने डिग्री ते कहने 100 डिग्री ते कहने ना कि पानी उबल गया, तो तुसीं पानी नूं चुल्हे दे उत्ते गैस दे उत्ते रखदे जे, 100 डिग्री एवें तो नहीं बनती। एक तो चलेगा तो 100 डिग्री बनेगी ना, सीधी तो 100 डिग्री नहीं ना बनती। असीं सीधा 100 नूं हत्थ पाउंदे आ, पानी 1 डिग्री तक कोसा होया, ठार भजी 100 तक पहुँचा, तू एक कदम गुरु वाल पुटेगा तो 100 तक परमात्मा तेनों आप फड़ के लै जाएगा। सो सतगुरु इत्थे समझा रहे हैं, कह लगे भलिया जिवें कोरे कपड़े नूं रंग चाड़ीए तो पा लाउण तो बिना उहदे ते रंग नहीं चढ़दा। जिस मनुख दे कोल रब दे भै दी खुंब नहीं, जिहदे कोल उद्यम दी पा नहीं हैगी, उहदे उत्ते कदी नाम दा रंग नहीं चढ़दा। इहो कारण अज असीं बहुते इस गल तो भज रहे हैं, नहीं जी परमात्मा मेहर नहीं करदा, परमात्मा किरपा करूगा तो जपांगे।
याद रखियो मैं कह ही दिता है कि गुरमुखो रब ने कृपा कर ही दी है। सो सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए। सतगुरु कह लगे पाहा तो बिना कपड़ा जिहड़ा है वो रंगिया नहीं जा सकता। भै विच खुंब चढ़ाई है, कहते भै का अर्थ है डर। रब दे डर अदब नूं लैके इस जीवन नूं खुंबे चाढ़। कह लगे शर्म पाहो तन होए ते उद्यम दी मेहनत दी पा बना के गुरु गुरु जपना शुरू कर। जे उद्यम करेगा भै नूं खुंबे चाड़ेगा तो सतगुरु कह लगे नानक भगती जे रपै। भगती का अर्थ है जे तू भगती दे विच बंदगी विच रंगिया गया, उद्यम किया, उद्यम करदियां करदियां एक दिन नाम दे विच एक मिक हो गया, उहदे च रंगिया गया। नानक भगती जे रपै कूड़ै सोए ना कोई। सोए का अर्थ हुंदा खबर। कह लगे भनक लगनी, कहते कूड़ की भनक भी नहीं लगेगी। भाव जो तेरे अंदर परमात्मा की बंदगी आ गई, सिमरन आ गया, उदों तेरी जिंदगी दे विचों कूड़ निकल जाएगा, उदों तेरी जिंदगी जिहड़ी वो साफ पवित्र हो जाएगी। अगले श्लोक दे विच सतगुरु नाल ही बख्शिश करते हैं। महला पहला, ये दूसरा श्लोक भी गुरु नानक साहब का है। ये विच सतगुरां ने जिहड़ी है वो इक्को गल ही समझाई है कि पत परवाना पिछे पाईया तां नानक तोलिया जापै। पत का अर्थ है इज्जत, परवान कहते हैं जी ये वट्टे नूं। एक परवान का अर्थ कबूल होना भी है, पंच परवान पंच प्रधान। पर परवान का अर्थ जिहड़ा है वो गुरबाणी दे विच वट्टा भी आया है। जिवें तकड़ी का वट्टा हुंदा ना, उहनूं परवाना भी कहा जाता है। हुण मनुख की करदा है, गल जिहड़ी पौड़ी दे विच याद रखियो आपां ये करनी है कि धुर कर्म जिन्हां को तुध पाया तां तिन्नी खसम ते आया। खसम नूं ओह ते हुंदे ने जिन्हां दे उत्ते बख्शिश हुंदी है धुर तों। पर सतगुरु कह लगे अज मनुख नूं पुछी है ना, जिवें मैं हुणे बख्शिश की गल कीती ते सतगुरु कहंदे पत परवाना पिछे पाईए तां नानक तोलिया जापे। हर कोई मनुख आपे कहंदा है कि मैं पूरा हाँ, सब को पूरा आपे होवै घट ना कोई आखे। हर कोई मनुख कहंदा मैं चंगा हाँ, मैं पूरा हाँ, मैं पूरा हाँ। अपने आप नूं कोई माड़ा कहण दा यतन नहीं करदा। पर उन्हां दे बारे गुरु नानक साहब की की विचारधारा ये सतगुरु श्लोक च बख्शिश करते हैं। कह लगे महला पहला, लब पाप दोए राजा महता कूड़ होआ सिकदार। लब का अर्थ है लालच। ये दोए शब्द जिहड़ा ये देली दीपक है। इनू तुसी लब पाप दोए पाठ इदां भी कर सकते जे। लब पाप दोए राजा महता पाठ इदां भी करते से। ये दुवल्ली चलता है। कुछ शब्द देली दीपक होंदे ने व्याकरण दे विच, ये दोवें पासे अर्थ होणगे। जिवें पातालां पाताल, लख आगासा आगास, उत्थे जिहड़ा लख शब्द है वो देली दीपक है, दोवें पासे चलेगा। इत्थे सतगुरु कहण लगे लब पाप दोए राजा महता। महता का अर्थ करांगे वजीर। सतगुरु कहन लगे कि जिहड़ा राजा है ना अज दे समय दे विच वो लालच बनया फिरदा है, ते जिहड़ा उहदा अगों वजीर है कहन लगा वो पापी है। ये दो पंक्तियां नूं पहलां समझ लीए, फिर ये अर्थ समझने सौखे हो जाएंगे। लब पाप लालच अते पाप दोए राजा महता। ये दोवें जाने एक राजा बनया फिरदा है, एक वजीर बनया फिरदा है। कूड़ होआ सिकदार। सिकदार का अर्थ करांगे सरदार, चौधरी। कहते जिहड़ा इस राजे दे राज का चौधरी है वो झूठ है। अगे इन्हां दे चौथा कौन है जी? कह लगे काम नेब सद पुछिए बह बह करे विचार। नेब का अर्थ नायब या इहदा सौखा अर्थ कर लीए सलाहकार। सतगुरु कह लगे जिहड़ा काम है ना, ये जिहड़ा लालच राजा सी ना उहदा सलाहकार है। ये चारे मिल के जिहड़ी विचार करते हैं कि जिंदगी नूं चलाउणा किवें है। इत्थे चार जिहड़े अवगुणां दा सतगुरां ने जिक्र किया है। एक गल याद रखियो, जिथे लालच आवेगा ना, लालच की पूर्ति पाप दे नाल हुंदी है। ये बड़ी सोहनी मेरे सतगुरां ने डिटेल बनाई। ये थोड़ा जिहा बरीकी नाल सानूं समझना पैना है। लालच की कल मैं परिभाषा दित्ती सी। लालच उहनूं कहिंदे ने जो अपने कोल संतुष्ट ना होके दूसरे दे वल ध्यान रखे, उहनूं लालच कहा जाता है। कई बारी साडे की अर्थ कर दिते जाते हैं कि मान लो एक दो भरा ने, इनू समझने वास्ते एक भरा जिहड़ा 8-10-15 हज़ार ते गुजारा करता है, मातड़ रह गया। उहदा दूसरा भरा सका भरा वो लख सवा लख रुपया महीने का कमाउंदा है। फर्क पै गया ना, 80-90 हज़ार का विच फर्क पै गया। हुण कमाई दोवें हक दी करते हैं, पर जे एक जिवें कहावत है ना, हथ ना पहुँचे थू कौड़ी। जिहड़ा ते लख सवा लख कमाउंदा उहदे कोल सहूलतां सारियां ने। जिहड़ा 10-15 हज़ार कमाउंदा उहदी महा रोटी पूरी हुंदी है। हुण जे 10-15 हज़ार वाले नूं तुसीं पुछो कि भलिया तूं क्यों नहीं जिहड़ा लख सवा लख कमाउंदा,
उन्हें ये नहीं कहना मैं मेहनत नहीं करता, वो कहता जी छड्डो पर अस सबर करके बैठे, वड्डा भरा तो लालची बनया फिरदा है। याद रखियो लाख रुपया सवा लाख कमाना लालच की परिभाषा नहीं। गुरु साहब ने किते नहीं कहा कि तू मेहनत ना कर। सिख इन्नी क मेहनत करे कि करोड़ां अरबां खरबां रुपया महीने का कमा लवे, गुरु कदी नहीं डकेगा होवे हक दा इहदा। लालच असल दे विच की है, कोई वध पैसे कमाउंदा वो लालची नहीं, वो ओदी मेहनत है। एक मनुख 8 घंटे काम करदा है, 8 घंटे जिहड़ा काम करके 16 घंटे बर्बाद कर दिंदा, कुछ खाण दे विच कुछ इधर उधर अड़ा दिंदा है। एक मनुख 15-16 घंटे काम करदा है, 8 घंटे नींद पूरी करदा, वो ओदी मेहनत है, ओदा लालच नहीं है। ये ओदी मेहनत है, वो किन्ना ओवर टाइम लाउंदा, किन्ना पिया काम करदा है। लालच वो है, मान लो मेरे को जिन्नी मेरी तनख्वाह आउंदी पई है ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਜ ना होवे तो मैं चाहवां दूसरे की भी जेब के विचों हथ पा के 100 मिलता है, 200 मिलता, 500 हज़ार जिन्ना भी उन्होंने हथिया लवां। उन्होंने सतगुरां ने लालच के नाल जिहड़ी वो तुलना दी है। लालच वो है जिहड़ा दूसरे की धन दौलत संपत्ति वाल तू ध्यान रखता है। हुण जिहड़ा लालच है, ये लालच की जिहड़ी दोस्ती पाप दे नाल है, क्योंकि लालच की पूर्ति जिहड़ी पाप तो बिना होनी नहीं। मेहनत करके मैं अपनी तो कमाई कर ली, पर जिहड़ा दूसरे की जेब का पैसा है वो पाप दे नाल ही इकट्ठा करूँगा ना, वो धोखा धड़ी करूँगा वो नाल। ये अगे शब्द है कूड़, जां मैं झूठ बोलूँगा तो जां पाप हेरा फेरी वो नाल करांगा। सतगुरु कहन लगे भलिया लभ जिहड़ा वो अज दा राज पिया करदा है मनुख दे मन दे उत्ते। ते सच्ची गल ये जिहड़े 4 इत्थे जिक्र कीते ने ना इस श्लोक दे विच, ये चारे अज साडे अंदर प्रबल ने। सब तो पहली गल हर कोई मनुख लालची है। अपना जो रब ने दिता होया है ये उत्ते संतुष्ट कदी नहीं चाहता कि आ भी चीज़ मेरे को आ जाए, आ भी आ जाए। लोग गरीब का खून निचोड़न लग्या वेखदे नहीं। मैं बड़ी वारी वेख्या है, कोई रक्शे के उत्ते आटो ते जावे ना, असी वो 5-5 7-7 रुपये मगर लड़ते हैं। गुरुद्वारे दे विच सेवादार नूं किते रुपया 100 देना पै जाए सानूं मौत पैंदी है। होटलों के विच जाके इजाश खानियां दे विच लखां रुपये साडे उड़ाए जाते हैं। ये सच्चाई है। मता मेरे शब्द किसी नूं जिहड़े वो अंदर नूं चुभण, ये अज दी सच्चाई है। गुरु घर दे विच विआह आनंद कारज होवे ना तो सेवादार खलोता है, उन्होंने जान लग्या रुपया हथ से 100 नहीं धर के जाणगे। जिस वेले उहिओ विआह की पार्टी पैलस दे विच चलदी है, फिर थद्दियां चलदियां ने। अजकल तो डॉलर डाउने ना असीं, थद्दियां दे नाल डांसरां दे उत्तों पैसे डाए जांदे ने। अज मनुख लालची है, अपने पैसे के उत्ते संतुष्टि किसी दिन, हर कोई पाप वाले पासे भज्जा फिरदा है। सो सतगुरु कह रहे हैं लभ पाप। मैं पहली बेनती की लालच, लालच की दोस्ती है पाप दे नाल। पाप तो बिना लालच की पूर्ति नहीं। तो जिहड़ा पाप है, पाप झूठ तो बिना नहीं हो सकता। हुण कोई पाप करदा उहदे पिछे झूठ तो बोलना पैना है ना। तुसीं ठगी मारदे जे, सच कह के तो ठगी नहीं ना मारी जानी, झूठ बोलना पैना है। कोई भी गलत काम करते जे, पाप करते जे, उहदे मगर झूठ है। तो जिथे ये 3 जाने इकट्ठे हो गए, जिथे लभ आ गया, पाप आ गया, झूठ आ गया, उत्थे फिर शाम नूं पार्टी अजाशी खाने दे विच चलदी, काम की पूर्ति हुंदी है। सतगुरु ये सच्ची गल है। आ जिन्ने भी अजाश खाने ने, मैं बड़ी वारी कहना जिहड़ा बंदा मेहनत सारी दिहाड़ी बेचारा रक्षा चलाउंदा मरदा है, वो कित्थों डांसरां दे उत्ते जा क्लबां दे विच पब्बां दे विच पैसे डा दूगा। पैसे हुंदे नहीं उहदे कोल, उहदा ते लूण तेल नहीं पूरा हुंदा। ये पैसे उहिओ उडाए जांदे ने जिहड़े हराम की कमाई हुंदी है। हुण जदों पैसा वाधू आ गया पाप दे नाल, सतगुरु कहंदे नाल ही चौथा काम आ गया। ये चारे आके मनुख नूं कंट्रोल करे फिरदे ने। लभ पाप दोए राजा महता कहंदे लालच राजा बनिया फिरदा है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ है वो अगों पाप है। राजा हुक्म करता है तो वजीर गां सिपाहियां नूं जिहड़ा है वो ऑर्डर दे के ते काम करवाउंदे ने। जिवें मान लो समझण वास्ते एक मंत्री कह देवे मैनूं इन्ने पैसे चाहिए ने, उहदे जिहड़े थल्ले लगे हुए अहलकार ने, छोटे मंत्री ने, वो बस डंडा चाढ़िया हुंदा कि जनता दे कोलों पैसा इकट्ठा कर लो, जिवें मर्जी कर लो। जिहड़ा राजा है उन्हें आर्डर देना। राजा जिहड़ा लालची है। वजीर जिहड़ा पापी है, वो इन्ना क पापी है कि कूड़ की सरदारी है, कूड़ नूं नाल लैके ते जिहड़ा है वो दुनिया दे विच विचर रहा है। लभ पाप दोए राजा महता। लभ अते पाप ये राजा ते वजीर ने। कूड़ होआ सिकदार, कूड़ जिहड़ा चौधरी बनया फिरदा है। सतगुरु कह लगे काम नेब सद पुछिए। जो 3 आ गए फिर मनुख कहंदा कि अज शाम की पार्टी जिहड़ी है, मैनूं माफ़ करियो शब्द मैं सीधे जे वरत रहा, अज शाम की पार्टी रंगा रंग होनी चाहिए। उत्थे फिर कामी बिरती दे नाल अजाश खानियां दे विच जाया जांदा।
ये अज तो नहीं, ये पुराने समयां दे विचों सी। राजे महाराजे भी जिहड़े सन इन्ने क काम ही हो गए। हिंदुस्तान जे डुब्बन का कारण सी वो केवल ते केवल वासना की पूर्ति सी। इत्थों के जिहड़े राजे शहजादे सन ना, वो उन्हां दे पतत होण दा कारण इक्को सी। कोई भी जिहड़ी चीज़ है वो गुरु ग्रंथ साहिब का एक बचन है, सतगुरु कहणगे साडे पतन होण दा कारण पता कि धन जोबन दोए वैरी होए। धन का अर्थ है पैसा, जोबन का अर्थ करांगे आवासना। जो पैसा आवेगा उत्थे वासना आवेगी। जो दोवें चीज़ां रल जांदियां ने उत्थे उस राज का, उस सोसाइटी का, उस लोकां दा, उस संगत का जिहड़ा पतत होना निश्चित है। सतगुरु कहण लगे काम नेब सद पुछिए, कहते उत्थे काम नूं जिहड़ी प्रधानता दे के बह बह करे विचार ते बैठ के विचारां कीतियां जांदियां ने। हुण जिहड़ी इन्हां तो अगे जनता है, जिहड़े लोग ने, सतगुरु कहंदे वो भी अन्ने तुरे फिरदे ने। सानूं मौका चाहिदा ना, माफ़ करना असीं जिन्ना मर्जी कही जाइए कि नहीं जी ये डेमोक्रेसी आ गई, असीं जिन्ना मर्जी रौला पाई जाइए ये असीं सच्चे हाँ जी, दूजा झूठा है। सतगुरु कहंदे नहीं, लोग भी इन्ने क ज़्यादा ज्ञान दे विच अन्ने हो चुके ने, जिहदा दा लाई फिरदा उही चलदा चलाई जांदा है। मैं पंक्ति पढ़ देवां, कहण लगे अंधी रैयत, रैयत का अर्थ है प्रजा, ज्ञान विहूणी। कहंदे जिहड़ी प्रजा, जिहड़े लोक ने, जिहड़ा समाज है वो ज्ञान तो बिना अन्ना है। भाहे भरे मुरदार, ये सुनियो, भाहे का अर्थ है अग, भाव अर्थ करांगे तृष्णा की अग। मुरदार का अर्थ हुंदा मुर्दा खाना। ये गुरमत दे विच मुरदार दे अर्थ ये ने, मैं श्लोक पढ़ देवां कि हक पराया नानका उस सूर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। किसी का पराया हक खाना जिहड़ा है वो गुरमत दे विच उहनूं मुर्दा खाण दे बराबर मन्निया गया है। तो सच्ची गल है, अज जिहड़ा फड़िया जांदा वो चोर जे, जिहड़ा बच जांदा वो साध जे। तुसीं वेखो वड्डे वड्डे राजनीतिक लोग जिहड़े ने उन्हां घरों भी माया फड़ी जाती है, तो वड्डे वड्डे जिहड़े साध ने डेरेदार माया उन्हां कोलों भी फड़ी जाती है। तुसीं बहुत बाबियां दी हिस्टरी वेखोगे। मैं कह देवां ये साडे कई कार सेवा वाले उन्हां दी हिस्टरियां यूट्यूब ते पईयां ने, किन्नी किन्नी माया इकट्ठी करते फिरदे ने। किहड़े किहड़े साडे डेरेदार ने, साध ने, जिन्हां ने माया इकट्ठी की। एक राजनीतिक पापी होवे ते चल जांदा। मैं कल भी कहा सी, जे धर्मी ही पापी बन गया तो फिर धर्म कित्थे जावेगा। सतगुरु कहंदे प्रजा इन्नी क ज्ञान च अन्नी हो गई, प्रजा सारी लुट्टण खोह ते लगी हुई है। बस ये है भी जिहदा दा लग जाता है वो काम चला जाता, जिहदा दा नहीं लगता वो कहंदा नहीं जी असीं साफ बैठे हुए हैं। एक बारी एक मनुख ने बड़ी सोहनी गल कही सी, कहंदा दुनिया दे विच 95% लोग चोर ने, ते नाल जिहड़ा लागे खलोता सी कहंदा इहदा मतलब 5% लोग शरीफ हो गए। कहंदा नहीं, 5% वो ने जिन्हां दा दा नहीं लगदा। सच्ची गल है, इस दुनिया दे विच असीं जे सानूं मौका मिले ना, असीं किसी दा हक मारन तो जिहड़ा अपना काम कड्ढण तो गुरेज नहीं करदे। जिन्हां दा नहीं दा लगदा वो अपने आप नूं जिहड़ा करैक्टर सर्टिफिकेट दई फिरदे ने, क्लीन चिट दई फिरदे ने कि मैं बहुत चंगा। पर मेरे सतगुरु कहण लगे प्रजा जिहड़ी है ज्ञान तो सखनी है। अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, भाहे भरे मुरदार। कहंदे जिहड़ी प्रजा है वो ज्ञान तो सखनी होने करके रूहानीयत का ज्ञान नहीं, ये नहीं पता कि की खाना है तो की नहीं खाना। गुरमुखो अज असी पढ़ बहुत गए हैं, मेरा समा हो चलिया। मैं एक ही बेनती कर देवां, एक गल जिंदगी च याद रखियो, जिन्ना क मेरा तजर्बा है। असी कई बारी घर च साडे च बड़ियां सुख सहूलतां ने, परमात्मा का दिता बहुत कुछ है, पर फिर भी साडे घरों बीमारी नहीं जाती। घर च कोई ना कोई बीमार रहिंदा, कोई ना कोई दुखी है। जे बीमारी चली गई है तो कोई ना कोई रोक किसी रूप दे विच दुख इन्ना क आ जाता है कि घर दे अंदरों चिंता जिहड़ी चिता दे बराबर बन के बैठी हुई है। असी सोचते हैं कि पता नहीं साडी गलती कित्थे रह गई। बंदा सोचता मैं अज इन्ना दुखी हाँ, कोई धी करके दुखी है, कोई पुत करके दुखी है, कोई माँ बाप करके दुखी है, कोई बीमारी करके दुखी है, कोई बीमार करके दुखी है। ये पिछे का कारण इक्को ही जिंदगी च निकलता है, जिहो जी साडी कमाई होवेगी साडे परिवार ते उहो जिहा असर पैना है। तुसी कदी तजर्बा करके वेखियो, तुहाडे बाहर इत्थे झुग्गियां ने, झुग्गियां वालियां नूं वड्डे वड्डे हॉस्पिटलों एडमिट देखिया तुसी? कोई नहीं हुंदे। उन्हां दे घर च कदी बहुता कले कलेश वेखिया? कदी नहीं हुंदा। दो रोटियां ने जे मिल गया खा लिया, नहीं तो उहिओ जिहड़ा माइओ सवेरे हुंदी उहिओ शाम नूं हो जांदी है। उन्हां घरां दे विच इन्ने कलेश नहीं जिन्ने अज साडे पढ़ियां लिखियां दे घरां दे विच ने। अज बच्चों की माँ बाप दे नाल नहीं बनती पई, भैन भरावां दी आपस विच नहीं बनती पई। उहदा कारण मनुख ने जिहड़ी सी मेहनत तो बहुत की,
पर केवल तो केवल मेहनत करता रहा, ठगी मार के जिहड़ी ठगी की कमाई सी ना वो साडे परिवार नूं लैके डुੱਬ जाती जी। सतगुरु इत्थे कह लगे प्रजा अंधी रैयत ज्ञान भी होनी। दुनिया बाहरी तौर पर बहुत पढ़ गई पर अंदर का ज्ञान ना जित सकी कि मैं किहड़ी चीज़ अपने घर खड़नी सी ते किहड़ी नहीं सी खड़नी। पुराने समयां दे विच जिहड़े धर्मी पुरुष सन ना वो एक राई जिन्ना दाना भी अपने घर किसी का नहीं सी खड़दे। अज असीं मौका, मैं पहले कह दिता, मौका कोई नहीं छड्डदे जी, जित्थों मिले असीं हड़प्पन की गल करदे। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है भलिया तू मेहनत की कमाई करी, मेहनत की कमाई नूं फल लगदा है। मैं इत्थे उदाहरण दे देवां, सतगुरु सज्जन ठग दे कोल जांदे ने, सज्जन ठग नूं कहिंदे ने जिन्नी कमाई कीती है उहदे लंगर ला दे। सतगुरु शिव नाभ राजे दे कोल जांदे ने, राजे नूं तो नहीं कहा तू लंगर ला दे। इतिहास पढ़िओ, ये गुरु नानक साहब दो हस्तियां नूं मिलदे ने, मैं सिर्फ दो का जिक्र किया है। राजा शिव नाभ वो राजा है पूरा रियासत का, उहदे कोल किन्नी संपत्ति होवेगी, किन्नी धन दौलत है। एक पासे जिहड़ा धर्मी बनया फिरदा सज्जन ठग है, सज्जन ठग नूं कहा जा रहा कि तू अपनी कमाई लोगों तो लुटा दे, क्यों? क्योंकि उहदी कमाई पाप दी सी। गुरु कहंदा मैं पाप नहीं रहन देना, ते जिहड़ा सी शिव नाभ उहदी कमाई हक दी सी। सतगुरु कहंदे मैनूं इहदी परवाह कोई नहीं। शिव नाभ नूं नहीं कहा तू अपना लंगर ला दे, सज्जन ठग नूं कहा सी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, रोटी खानी कदी जिंदगी के विच बैठ के सोचे, चलो बाकी विचार आप कल नूं करांगे। मैं एक गल जिंदगी दे विच सोचो किन्ना क साडा मसला है। रोटी खाने ना रात नूं, कोई सुक्की खा के सौ जाता है, कोई चोपड़ी खा के सौ जाता है। काम तो इन्ना कि सवेर नूं सवेरे उठ के फिर असीं अपने अपने कामां नूं चले जाने। तो जे चोपड़ नहीं भी लोगों के खून दे नाल है, इहो जी रोटी खाण दा कोई लाभ नहीं। सो सतगुरु इत्थे कह रहे हैं अंधी रैयत ज्ञान भी होनी। प्रजा जिहड़ी वो ज्ञान तो सखणी होई फिरदी है। भाहे भरे मुरदार कहंदे तृष्णा की अग दे विच मुरदार पई खांदी है, लोकां दा हक खांदी है, जिहदे करके इन्हां दा जीवन जिहड़ा वो गरकदा पिया है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान। इस तो अगे सतगुरु बख्शिश करनगे। ज्ञानी की करते हैं, विद्वान पए की करते हैं, ये ढाडी लोग की करते हैं, धर्मी ते जति सती अपने आप नूं किवें पूरा कहिंदे ने। इहदी विचार आपां कल नूं सांझी करांगे। समय की समाप्ति। इन्नियां बेनतियां प्रवान। होइयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। लब पाप दोए राजा महता, कूड़ होआ सिकदार, काम नेब सद पुछीए, बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान विहोणी, भाहे भरे मुरदार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।